and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with this Lissajous figures by using the CRO or formation of Lissajous figure by using cathode ray tube, right? In that, we seen how unknown frequency of AC source can be found with the help of known frequency. See here, known frequency is 50 hertz. Okay, to find unknown frequency, we got a formula, that is Fy is equals to Nh by Nv into Fx, where Nh is number of horizontal cuts and Nv is number of vertical cuts, right? Or you see here. Then based on this formula, we seen how we founded it, this unknown frequency. Okay, if we got what we got, this unknown horizontal cuts and vertical cuts are in the ratio 1:2 etc. है ना. See, वर्टिकल कट्स 1 2 मिले थे और हॉरिजॉन्टल कट्स कितने मिले थे, एक ही मिला था, कट मिला था, कट्स नहीं मिले थे, है ना, NH. तो फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से Fx 50 है नॉन फ्रीक्वेंसी, तो अननोन फ्रीक्वेंसी Fy कितना मिला, 25 मिला हमें, है ना. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड what we can find, Lissajous figure with the help of cathode ray tube, and with the help of that Lissajous figure we can find the unknown frequency. Okay, now today we are going to see the formation of Lissajous figure by the optical method, right? For finding the Lissajous figure with the help of optical method, what we are going to see first is experimental arrangement. Experimental arrangement is given here. See what is given here. There are two tuning forks, one is A, another is B, right? And both are electrically maintained tuning forks. मतलब उनको हम वाइब्रेशन में किसके हेल्प से रख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रख रहे हैं. These are two electrically maintained tuning forks, A and B. Okay, and A tuning fork is having M1 mirror with it, okay, with the prongs of tuning fork, and B is connected with the mirror 2, or prongs of B are connected to mirror 2. Okay, then on these two mirrors, what you can say, light is falling from a source of light S through a lens. Okay, that lens is used for converging the rays coming from the source of light, and you are going to obtain some image on the screen, okay, after the reflections from M1 and M2. Okay, what is going to happen, we are going to see now step by step breakdown. Two tuning forks are arranged such that their vibrations are at right angle to each other. B का वाइब्रेशन अगर इस तरह से हो रहा है तो A का वाइब्रेशन इस तरह से होगा, मतलब परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रही है, वर्टिकल लाइन, है ना. सो इस तरह से होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. ओके, और यहाँ पे जो डायग्राम हम मेंशन वर्ड कैसे बनाया है, वो डायग्राम में द वाइब्रेशंस ऑफ A आर इन वर्टिकल प्लेन एंड वाइब्रेशंस ऑफ B आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक, देन अब देखिए ये जो S से क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, सोर्स S से हमें क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है. वो लाइट को हम थ्रू द लेंस L क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे. सी, light from a point source
S is made convergent. Convergent means जो पॉइंट सोर्स से लाइट निकलता है, ये पॉइंट सोर्स से लाइट निकलता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर लेंस सामने है तो वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये सिंगल डायरेक्शन में पास करेगा, राइट। देन वो जो लाइट कन्वर्ज किया उसने, ये देखिए कन्वर्ज किया, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा लाइक दिस, ओके, लाइक दिस मिरर पे फॉल होगा, राइट। देन वो जो मिरर पे फॉल होगा उसके बाद लेंस एल के थ्रू पास होने के बाद, कन्वर्ज एल के थ्रू होता है ना लेंस, फिर उसके बाद M1 पे फॉल होगा, देन इट रिफ्लेक्टेड टू M2 एंड फाइनली प्रोड्यूसेस अ स्पॉट ऑन स्क्रीन। जब दोनों ट्यूनिंग फॉर्क स्टेडी है तब कैसा मिलेगा, सिंगल एक स्पॉट बनाएगा, ठीक है। लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क तो वाइब्रेट हो सकता है, तो हम देखते हैं तब क्या होगा। when only one tuning fork A vibrates, vertical straight line is obtained on the screen। मतलब यहाँ पे ये जो दो ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें से सिर्फ A वाइब्रेट हो रहा है ना, जो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट होता है, राइट, इस तरह से, है ना, या उसके दो ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसे, तो ऐसे वाइब्रेट होंगे वो, है ना, लाइक दिस, ऊपर नीचे है ना। तो वर्टिकल प्लेन में जो वाइब्रेट हो रहा है उनकी वजह से हमें जो स्पॉट मिलता है वो कैसे मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो उसके बाद व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क बी अलोन वाइब्रेट्स, मतलब ए स्टेडी है और बी सिर्फ अकेला वाइब्रेट हो रहा है, तो वो हॉरिजेंटली वाइब्रेट होता है, तो हमें हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, बराबर की नहीं, हाँ। देन उसके बाद क्या कंडीशन, कि ये जो दो ट्यूनिंग फॉर्क है बी और ये ए, अगर दोनों वाइब्रेट होते हैं तो क्या होगा, फिर जो लाइट हमें स्पॉट हो रही है कहाँ पे, स्क्रीन पे, when both forks vibrate simultaneously then spot traces a Lissajous figure, and what the shape is depend on the frequency of both the tuning fork। कौन से, ये वाले है ना, ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के क्या फ्रीक्वेंसीज है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको लिसाजस फिगर मिलना है, ठीक है। तो हमें एक बात पता है क्या, कि अगर फ्रीक्वेंसीज सेम लेते हैं, कर सकते हैं ना, जो दो ट्यूनिंग फॉर्क हम लिए हैं और ले रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के हो, इतना अगर हम केयर ले लें, देन द रिजल्टेंट लिसाजस कर्व्स, रिजल्टेंट कर्व्स लिखा है ना, तो वो कौन से होंगे, लिसाजस फिगर से होंगे, देन दैट रिजल्टेंट कर्व्स विल बी द स्ट्रेट लाइन और सर्कल और एन एलिप्स, जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि लिसाजस फिगर में ये देखिए, ये एक बार सर्कल्स है ना, फिर उससे पहले हम देखे थे, यहाँ पे है नहीं, है ना, क्या एलिप्स मिला था, ऑब्लिक एलिप्स मिला था, फिर क्या मिला था, सिमेट्रिक एलिप्स मिला था, है ना, सर्कल तो अभी हमने देखा, राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिले थे, तो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जब इक्वल रहेगा फ्रीक्वेंसी, तब frequencies are equal, then the frequencies of two tuning fork are exactly equal, then resultant curve will be the straight line or ellipse or circle, okay। Now
think you may understand the what we studied, and with this I am going to end the today's class. Thank you very much for listening the class carefully till the now or till the end. Bye bye for now.